Hello friends, namaste. It's 2:53 a.m. night and I'm reading about business environment in that especially the GDP. I have just read some times back about the policy, monetary policy, fiscal policies and so on many and then first analysis and there are many chapters that we need to cover in this business environment management course. And tomorrow and this afternoon, today it's 30th April, and today itself in afternoon our examinations. So while going through my study, I found that GDP is very important chapter, and on that, and it's my favorite chapter, and she's going to ask us some questions, the numerical questions in GDP. So first, let's understand. So I thought that I prepared the notes. Then I thought that why not I should make a small video for you all to understand GDP in a uh, very simple language, and so that you can understand, you can prepare for the exam, and you can write well. So what is the definitions? First, understand. So GDP is gross domestic product. So it says that gross domestic product, the total value of all the goods and services produced in a country in 1 year. Do you understand? So GDP is a monetary measure of the market value of all the final goods and services produced and sold in a specific time period by country. So this is GDP is most often used by the government of a single country to measure its economic health. If you want to know the economic health of a country, you need to go and find out the GDP of that country. So if you just see focus here, so this is that gross domestic product. So the total value of all the goods and services. So in GDP what comes? Goods and services. In economics, only these two factors we talk, goods and services, which are produced in a country in 1 year, that is within, this is domestic, GDP is domestic. So within the boundary of a country, all the goods and services which are produced within the boundary of a country in a year is called GDP. So what are the four things we need to keep in mind? The first is the boundary of a country, not the geography boundary. That is not the map you see, that's the geographical boundary, geographical map of a country. Rather, the political boundary of a country. Imagine someone living in Mumbai and some fishermen go into the sea, okay, and catch some fishes, comes in the market and sells. So that will be also called under the political boundary of a country, and that will be considered under GDP. If Air India flies from Mumbai to Dubai and through the services earns the revenue, that will be considered under the political boundary of the country. If some embassy is working in other country, and imagine on the passport issue they earns the fee, that will be called the political boundary of a country, and that earning will be considered as domestic product. So that is GDP. And in what time frame? So that is in 1 year. And what are considered the goods and services, and what is the gross value of the product. So imagine, अगर आप मान के चलो कि एक समोसा खाते हो, तो एक समोसा का जो है अंतिम मूल्य को हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे. कैसे? अभी उसमें आटा लगा, उसमें आलू लगा, उसमें मिर्ची लगा, उसमें मसाला लगा, उसमें ऑयल लगा, उसमें लेबर लगा, कहीं पे बना उस होटल में तो उसका कॉस्ट अलग से लगा. तो वो आपको क्या करता है, वो दुकानदार को आप देते हैं अलग से पैसा, आलू का अलग से 1 आना, 8 आना जो है मिर्ची का, आठ आठ आना जो है आप बोलते हैं 50 पैसा भैया,
आप आटे का दे दो, 50 पैसा आलू का दे दो, ऐसे तो नहीं होता है। आपसे ग्रॉस वैल्यू लिया जाता है, अंतिम मूल्य लिया जाता है। जैसे कि आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उसमें प्रोसेसर्स रहता है, चिप्स रहता है, मदरबोर्ड रहता है, विंडोज़ रहता है। तो आपसे क्या कहता है कि कोई इमेजिन कि आप एप्पल का लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो या डेल का खरीदते हैं तो क्या कहता है कि कोई कंपनी की आप इसका अलग से दो, इसका अलग से दो, नहीं। वो कहता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज लैपटॉप, व्हाट इज़ द प्राइस दैट वी पे, so that is considered under GDP. So today we will learn about what is GDP, then GNP and NDP and then NNP. All these are very important. So you understood about the GDP? Now what is GNP? Gross National Product. And how it is calculated? Just see the differences between GDP and GNP. अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि इमेजिन टाटा कंपनी एक इंडिया की है, जो कि इंडिया में है। ये हमारे डोमेस्टिक कंपनी है। इमेजिन जियो है ना, बहुत सारे कंपनीज है। तो उसको हम एक इमेजिन कि हम जीडीपी देते हैं, उसका टोटल जो है प्रोडक्शंस है वो 100 रुपीज़ का है। इमेजिन मानते हैं वैल्यू ये एक्स मान रहे हैं। अभी एप्पल कंपनी है, वो फॉरेन की है लेकिन वो इंडिया में है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी वैल्यू मान के चलो 50 रुपये की है। तो टोटल जीडीपी कितना हो गया? 150 रुपये की। लेकिन ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी, लेकिन इंडिया में प्रोड्यूस गुड्स कर रही है, तो इसको हम विद इन द बाउंड्री है, तो चाहे फॉरेन कंपनी क्यों नहीं हो लेकिन इंडिया में है तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शंस दे रही है, तो दैट वी विल कंसिडर अंडर जीडीपी। सो दिस इज़ 150। इमेजिन जिसान हमारा एक फ्रेंड है, वो दुबई में कमा रहा है, तो 10 रुपीज़ इमेजिन कमाया, तो क्या हम उसको जीडीपी में कंसिडर करेंगे? नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शंस नहीं है, ये बाहर कमा रहा है। लेकिन उसको कहाँ कंसिडर करेंगे? नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, ये हमारी जो राष्ट्रीय उत्पाद कितनी हो रही है उसमें हम उसको कंसिडर करेंगे। तो जीएनपी इज इक्वल टू व्हाट? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। अभी एक्स माइनस वाई क्या है? तो इसमें देखिए, अभी एक्स हम कंसिडर कर लेंगे जिसान का 10 रुपीज़। अब वाई कंसिडर कर लेंगे जो फॉरेन कंपनी है, क्योंकि वो अपने पैसा लेके यहाँ से चली जाएगी। उसका जो प्रॉफिट है वो हमारे को नहीं छोड़ेगा इंडिया में, हमारा नेशनल इनकम नहीं होगा। वो जो प्रोडक्शंस जितने का गुड्स किया है उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है कि इंडिया में है तो इंडिया में रोज़गार उत्पादन हो रहा है। अभी रोज़गार अगर उत्पन्न हो रहा है तो हमारे लोगों को नौकरी मिल रही है, हमको टैक्स दे रही है, तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये पैसा जो प्रॉफिट कमाएगी यहाँ से लेके अपने कंट्री चली जाएगी, इसलिए इसको हम जीएनपी में नहीं रखेंगे। तो जीडीपी कितना हो गया? मैं यहाँ पे हमारा 150 रुपया हुआ, तो हम यहाँ पे 150 रुपया जीडीपी रखते हैं, प्लस 10 रुपये जिसान ने इनकम क्या, जो कि फ़ॉरेन में रहते हुए कमाए, लेकिन ये रेसिडेंट इंडियन है, तो वहाँ से इनकम जो है ये यहाँ भेज रहे हैं, तो 10 रुपीज़ इसको रखा हमने। और ये 50 रुपीज़ एप्पल का, क्योंकि ये हम बाहर कर दिए, इसने जितना भी प्रोड्यूस किया था इसको हम बाहर कर दिए। तो कितना हो गया? 150 प्लस 10 160 माइनस 50 हो गया, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है, इसको हम आउट कर दिए, तो हमारे पास कितना बचा? 110। तो ये हमारा नेशनल इनकम हो गया जीएनपी। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारा, अगर आप ये जीएनपी कम रहता है जीडीपी के बनिस्बत। अब देखिए एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें अभी आप मान के चलिए कि गुड्स बनाए हैं, अभी 1 लाख प्रोडक्ट बनाए, तो सारे प्रोडक्ट तो आप सब सही है नहीं होगा, उसमें कुछ जल जाएगा, कुछ डेप्रिसिएट हो जाएगा, कुछ बर्बाद। इमेजिन एलईडी बल्ब बनाया आपने, 10 बल्ब बनाया, 10 में से 2 बल्ब तो ख़राब भी हो सकता है, तो वो डेप्रिसिएशंस होता है, उसको डी। तो जीडीपी माइनस डी, ये डी जो है फॉर डेप्रिसिएशन, उसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो हमारा एनडीपी निकलेगा। तो हमारा कितना था यहाँ पे जीडीपी? 150। अभी 150 में मान के चलो कि हमने 8 रुपया का डेप्रिसिएशन टाटा को लगा, 2 रुपया का डेप्रिसिएशन एप्पल ने दिखाया, तो 8 2 10 रुपया हो गया, तो हमने टोटल 10 रुपया माइनस कर दिए, तो हमारा
एनडीपी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो गया आफ्टर डेप्रिसिएशंस, यानी जीडीपी में लेस डेप्रिसिएशन, तो टोटल हो गया 140। ये हमारा एनडीपी हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इफ़ यू सी नो एनएनपी, ये जो हमारा एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो जीएनपी माइनस डी क्या हो गया डेप्रिसिएशंस। तो जीएनपी कितना है, जीएनपी कितना हमारा 110 हुआ था यहाँ पे। जो फॉरेन कंपनी का 50 रुपीज़ हमने बाहर कर दिया था, जिसान जो कि इंडियन है वो अब्रॉड में रह रहा है, वो अर्निंग किया 10 रुपीज़, तो उसको हमने ये टाटा का जो प्रोडक्शंस हुआ था, जो टोटल जो जीडीपी था तो उसमें ऐड कर दिया था, माइनस हमने इसको 50 बाहर कर दिया एप्पल का, तो हमारे 110 हुआ। तो 110 जीएनपी, उसमें से हमने डेप्रिसिएशंस, तो डेप्रिसिएशन हम किसका करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये एप्पल कंपनी का हमने यहाँ से ऑलरेडी 50 बाहर कर दिया, तो सिर्फ टाटा कंपनी का डेप्रिसिएशन हमको इसमें से माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन टाटा का कितना है 8 रुपीज़, तो 110 माइनस 8 कितना हो गया 102। तो ये 102 जो है ये हमारा एनएनपी निकल गया। अब आप समझ गए। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब अंडरस्टैंड कीजिए कैलकुलेट कैसे होता है और कितने सारे फैक्टर्स है कैलकुलेट करने का। सो देयर आर मेनी हाउ टू कैलकुलेट। नॉमिनल जीडीपी होता है जो कि आपको क्वेश्चंस आने वाला है, रियल जीडीपी होता है, मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट होता है, इसको निकालते हैं, जीडीपी है ना जो परचेजिंग पावर पे निकाला जाता है। सो नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो मार्केट प्राइस पे निकलता है। तो कोई भी गुड्स का जीडीपी जो है होता है ये नॉमिनल और रियल दोनों में डिफरेंसेस रहता है। अभी नॉमिनल प्राइस जो होता है हम लोग जो पे करते हैं किसी भी गुड्स का, वो मार्केट प्राइस पे करते हैं। मार्केट प्राइस में क्या रहेगा, जैसे एक पेन है, इस पेन का जो जीडीपी है, आप देखिए मार्केट प्राइस है, इसमें क्या ऐड है प्लस कोई टैक्स रहेगा तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर सब्सिडी रहे, जैसे कि गैस में सब्सिडी रहता है तो प्राइस घट जाएगा। तो ये एक नॉमिनल है, ये रियल नहीं है जीडीपी जो हम देख रहे हैं। रियल जीडीपी, तो जीडीपी जो होता है, अभी आप रियल जीडीपी अगर देखेंगे वो एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होता है। फैक्टर कॉस्ट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, जबकि हम जीडीपी जो होता है उसमें मार्केट प्राइस पर जो होता है तो उसमें माइनस करेंगे टैक्स प्लस सब्सिडी ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से जब हम टैक्स को माइनस करेंगे प्लस सब्सिडी ऐड करेंगे तो रियल, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे हम कैलकुलेट करते हैं तो रियल जीडीपी अपने को पता चलेगा। अभी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं फैक्टर कॉस्ट। आप कहीं भी एक फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या चीज़ होता है, लैंड होता है जरूरी, लेबर जरूरी होता है, यानी कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मैं वहाँ लेबर हुआ उस कंपनी में। मेरी अगर अपनी फैक्ट्री ही है तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स काम करेंगे। कोई अगर अपना ब्रेन ही यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो लेबर हुआ उस कंपनी में। तो हम लैंड तो चाहिए फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, बिना पूंजी का तो कुछ नहीं हो सकता है। और इंटरप्रेन्योर, जो इंटरप्रेन्योर यानी कि कोई जो एक जो ह्यूमन रहेगा, ह्यूमन कैपिटल्स, वो इन्वेस्टमेंट लगाएगा अपना, तो उसके भी तो फैक्टर्स होंगे। तो जो व्यावसायिक उसमें अपना लैंड, लेबर, कैपिटल्स और स्वयं को लगाते हैं तो ये सारे प्रोडक्शंस का फैक्टर्स होता है। तो फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो रेशियो निकालते हैं उसमें यही सब फैक्टर्स ऐड होता है। अभी इसको कैसे कैलकुलेशंस मेथड कैसे है, आइए हम चले देखते हैं। आपको चलो कि एग्जामिनेशंस में मैडम ने दे दिया है, या आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, हम ये मैनेजमेंट की एमबीए कोर्स से बाहर की भी बात कर रहे हैं, किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट्स को या कहीं भी एग्जामिनेशंस में आपको इस तरह का क्वेश्चंस आएगा तो कैसे निकालेंगे। इमेजिन कि हम एक प्राइस, हम ईयर वाइज कैलकुलेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालने का, फिर जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे हम। सो अब एक ईयर इमेजिन 2010, 11 और 20 हमने 3 साल लिया। एक गुड्स का प्राइस जो है हमने 5 रुपीज़ दिया और कितने नंबर्स प्रोड्यूस हुआ, गुड्स 20 नंबर हुआ। फिर 2011 में 6 है प्राइस पर यूनिट, हमने 19 किया इमेजिन प्रोड्यूस। फिर 2020 में 10 रुपीज़ प्राइस है, फिर 15 नंबर किया।
ये आपको लग रहा होगा कि ये बढ़ रहा है, लेकिन ये प्राइस बढ़ रहा है, देखो सर ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेस प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी जो हम देख रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया 5 × 20, 2010 में आप देखें 5 × 20 तो 100 हो गया, 6 × 19 तो 6 × 19 114, फिर 10 × 15 2020 में वो 150, यानी कि ये बढ़ रहा है। आपको लगेगा कि हर साल हमारा जीडीपी जो बढ़ रहा है, लेकिन रियल में ये बढ़ नहीं रहा है। आप देखिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने या आईएमएफ ने, जो वर्ल्ड संस्थान है, उन्होंने एक या कोई भी कंट्री के लिए एक बेस प्राइस रखती है कि आप बेस प्राइस पे रियल जीडीपी कैलकुलेट कीजिए। तो वो इमेजिन 2010-11 का हमने लिया, तो 2010 का हम जो है बेस प्राइस, इसमें से एक बेस प्राइस लिया, तो बेस प्राइस क्या है 5 है 2010 का। तो यही जो है तीनों ईयर में हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो आउटपुट हो रहा है प्रोडक्शंस। तो रियल जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए आप 2010 में देखिए कि हमारे प्राइस क्या था 5 रुपीज़, हमने गुड्स कितना प्रोड्यूस किया था नंबर, तो 20 नंबर प्रोड्यूस किया, तो 5 × 20 कितना हुआ 100। अभी 2011 में कितना था 19 नंबर्स हमने प्रोड्यूस किया है। प्राइस 6 नहीं लेंगे हम पर यूनिट, हम 5 ही लेंगे क्योंकि ये बेस प्राइस है। तो 5 × 19 कितना होगा 95। 2020 में कितना था 15 नंबर्स क्या, लेकिन 10 प्राइस नहीं लेंगे पर यूनिट, हम 5 ही लेंगे क्योंकि बेस प्राइस हमारा 5 है। तो 5 × 15 कितना होगा 75। तो अब आप देखिए कि ये तो अभी घट रहा है जीडीपी रियल में। तो ऐसे ही लगता है नॉमिनल जीडीपी जब आप देखेंगे आपको बहुत ग्रोथ लगेगा, बट एक्चुअली वी कैलकुलेट द एंड आइडेंटिफाई द रियल जीडीपी टू सी द हेल्थ ऑफ एनी कंट्री। ये वैल्यू जो है हम नॉमिनल लिए थे, इसलिए एक कंसिडर्ड करके हमने एक्स लिया था, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट पे हम निकालेंगे रेशियो, वो कैसे निकालेंगे देखिए। सो द फॉर्मूला इज़ दैट, फॉर डिफ्लेटर निकालने के लिए नॉमिनल जो जीडीपी है डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इन 200, तो रेशियो निकल जाएगा। तो 2010 का अगर आपको निकालना है डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर कितना था, रेशियो क्या था, तो ये 100 था। कैसे 5 × 20 100, और रियल जीडीपी कितना है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 रेशियो निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 2010 100। अगर आप 2011 देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी कितना है 114, डिवाइडेड बाय क्या हमने बताया है रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी कितना है 95। तो 114 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाय 95। तो आप 19 से भागा देंगे, 19 के 14 से 114, 19 × 5 = 95। अब 5 को 6 में डिवाइड करेंगे तो फिर 5 का 5 1 बचा, अब पॉइंट आएगा तो 5 × 10 यानी कि 1.2 आता है इंटू 100, 120 हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए 2020 में कितना था, नॉमिनल जीडीपी 150 और रियल जीडीपी कितना है 75। तो 150 150 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कितना होगा 200। सो दिस इज़ द मेथड दैट वी कैलकुलेट द nominal GDP. This is this way, like the year price and numbers will be given. Nominal GDP how we take out, and this is then the real GDP. So real GDP we will take out on the base price of 1 year, which will be calculated for all the years, and then GDP deflators, nominal divided by real into 100, तो रेशियो आपको निकल जाएगा. So this is the method to calculations methods, and I hope you are clear about these calculations. तो आपने इस सेशन में सीखा जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, देन एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशंस लेस कैसे करते हैं, मार्केट प्राइस क्या होता है, उसमें टैक्स सब्सिडी होता है. अभी टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो अभी तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के जगह जीएसटी ला दिया गया है, तो अब प्राइस
फैक्टर्स क्या होता है वो हमने देखा, मार्केट प्राइस, फिर एट फैक्टर कॉस्ट हमने देखा। फैक्टर्स क्या क्या होता है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर्स है। So we have discussed about this nominal GDP, real GDP, market price, factor cost. So and then how it is nominal GDP and real GDP is calculated, and how the ratio GDP deflator is being taken out. So this is friends for today, and I wish you all the best for your exams. Thank you. This is your friend Ashutosh, and I will upload it on Citizen India TV, so you can watch there also. If you can repeat, you can put your comments, and if you have any questions, you can call me. Thank you and good night.